Hello everyone, this is CACS Sparsh Sudani this side. I hope you are doing well. और जैसे मैंने बोला था आपको, we will cover short videos of some important topics which are very important, very relevant for your CA final paper 6 integrated business solution. So in this video we are going to cover Ind AS 32 and 109, that is your financial instrument, which the part which is relevant for IBS. And yes, the MTP, the mock test paper 2 has arrived and it has good case studies, I must say, for IBS, and we will cover that definitely in the next video. और एक कुछ आपको मैं और एक फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसमें फॉरेक्स का थोड़ा सा पार्ट कवर किया हुआ है, तो एक हम फॉरेक्स का एक सिंपल सी शीट आपको दे देंगे टू अंडरस्टैंड, और कुछ वो चीज़ें रहेगी दैट वुड बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम्स. तो चलो, let us not waste any time. Let us begin today's lecture, today's video regarding your CA final paper 6. चलो तो देखो. Yes. So in this video, as I told you, we are going to cover Ind AS 109, that is your financial instrument. What does it cover? It covers financial assets and what is amortized cost. This is very important. If it meets both of the following criteria, if an asset meets both of the following criteria, you have to account it as accounted as per the method of amortization, as per the amortized cost. What are the two methods? Hold to collect business model test and SPPI, contractual cash flow characteristic test. So what is SPPI? SPPI is solely payments of principal and interest. The investment or the money that has been placed or invested with the view to only earn the principal and interest, or with a view that you have to just pay the principal and interest, that would be classified under your amortized cost. So these two, if both of the criteria is fulfilled, then we have to classify it or recognize it at amortized cost. Okay. Example of financial asset classified and accounted for amortized cost, that is trade receivables, investment in government bonds, loan receivable with basic features. Basic features यहाँ क्यों बोल रहा हूँ? Because अगर if the loan has equity features का ये आप समझ जाएंगे what is equity feature. Equity feature में ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ अ लोन, अगर आपको कोई ऐसा लोन स्ट्रक्चर है जो नॉर्मल लोन से आपको कम रेट्स में मिला है, या फिर उसके कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो नॉर्मल लोन से वेराई करते हैं, देन देयर इज एन इक्विटी पार्ट टू द लोन एज वेल. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर वेरी कॉम्प्लेक्स. अगर सिर्फ सिंपल आपके रहते तो इस Ind AS की नीड नहीं रहती. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स. उनका जो बेसिक अगर सिर्फ है, दैट वुड बी क्लासिफाइड अंडर अमोर्टाइज कॉस्ट. मतलब क्या? सीधा क्या हुआ? अमोर्टाइज कॉस्ट मतलब आपने पेमेंट की, आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट आया, यू विल रिसीव द इंटरेस्ट. आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट आया, आपने प्रिंसिपल को उसमें रिपेमेंट कर दिया. बेसिक सा वैसा चलते जाएगा. बट इफ इट हैज एन इक्विटी पार्ट, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना. सर या ठीक ये पॉइंट है, जस्ट अ सेकेंड. यस, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इक्विटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम अमोर्टाइज कॉस्ट के बेसिस पे नहीं लेते हैं. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैन नेवर बी क्लासिफाइड एट अमोर्टाइज कॉस्ट. अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको कभी भी आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. फिर सर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज FVT OCI, फेयर वैल्यू थ्रू OCI. फाइनेंशियल एसेट शैल बी मेजर्ड एट fair value through OCI if below conditions are met. वहाँ पे if you have the question for classification and recognition of financial asset, then you have to check if it will be recognized through FVT OCI or measured through FVT OCI. So what are the conditions? Financial asset is held with objective of hold to collect and selling financial asset. What is the model? Hold to collect payments, and then afterwards sell the financial assets. Like for the example, the equity investment we make, or some other investment in which we hold to collect and then sell the financial asset. Contractual terms give rise to on specific dates to cash flows that are solely payments of principal and interest. As I told you, if these two criteria are fulfilled,
and financial assets are to be measured at FVT OCI, fair value through OCI. Intention of the entity is to sell the instrument before maturity. We have to look for this. If the intention is to hold till maturity, then we will recognize it as measure it on amortized cost. If the intention of the entity is not to sell is to sell before the maturity period, then we will recognize it at fair value through OCI. यहाँ पे थोड़ा सा ना ये डिस्टर्बेंस हो गया है, ये थोड़ा सा कन्वर्जन टू वर्ड PDF कन्वर्जन ये थोड़ा टीम से भी रह गया, बुक्स में भी अगर हो सकता है किसी में हो, मैंने अभी तो रेक्टिफाई करवा दिया था. सो ये यहाँ पे प्लेस्ड है और ये यहाँ पे है. मैं नेक्स्ट बुक में रेक्टिफाई करा दूंगा. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड अ कॉरिजेंडम ऑन टेलीग्राम, तो वो भी ठीक हो जाएगा. बट इसको ये यहाँ प्लेस्ड रहेगा और ये बस हल्का सा मिक्सअप है, दैट्स द थिंग. तो कौन कैसे कैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को आप कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इफ जो उनसे इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, रिकॉग्नाइज्ड इन P&L यूजिंग EIR. EIR इज योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. सर क्या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज डिफरेंट? यस, डेफिनेटली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज डिफरेंट. क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट. तो वहां पे क्या हो सकता है, इक्विटी का पार्ट भी हो सकता है. तो वहां पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द कूपन रेट. तो कूपन रेट से एक्चुअल इंटरेस्ट रेट डिफर करेगा. एक्चुअल इंटरेस्ट रेट वुड बी योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. कूपन रेट से ये अलग रह सकता है इफ इट हैज अ इक्विटी पार्ट. ठीक है. उसके बाद अदर चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट ऑन रीमेजरमेंट टू फेयर वैल्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन OCI. मैंने जैसे बताया FVT OCI है, तो फेयर वैल्यू का जो भी मेजरमेंट का changes होगा that would be recognized in OCI only. Or when the financial asset is de-recognized, cumulative gain or losses recognized in OCI reclassified to P&L. अभी तक के the gains which you have already recognized or losses which you have recognized in the OCI shall be reclassified to profit and loss. If there are gains, it will be reclassified to profits. If there are losses, it will automatically reclassified to losses part of the profit and loss statement. Okay, equity में कैसे होगा? Ind AS 109 requires all equity investment to be measured at fair value. कभी भी ध्यान रखना, all equity investments are to be measured at fair value, and all changes in fair value are recognized in P&L. ये जनरल रूल बोलता है कि जो भी इक्विटी के चेंजेस इन फेयर वैल्यू रहेंगे दैट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L. जनरल रूल यही बोलता है. However, entities can make irrevocable choice at initial recognition to classify equity instrument not held for trading, because trading के लिए automatically आपको क्या है, FVT OCI में जाना चाहिए, at P&L में जाना चाहिए. at FVT OCI अगर आप शुरू से ही आपको क्या करना पड़ेगा, irrevocable. If you choose to measure it at FVT OCI, then it is irrevocable. You can't go back FVTPL, that is your fair value through P&L. In such cases, changes in fair value shall be recognized in OCI and dividend receipt will be classified in P&L. So the changes in value will be recognized in OCI and the dividends as a payment, it would be recognized in P&L. ठीक है, समझ गया? फिर financial asset is classified at FVTPL, that is your fair value through profit and loss. The residual category, all other assets. कौन से एसेट आएंगे इसमें? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जैसे यहाँ बताया था. नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आप किसमें कर सकते हो? FVT OCI. द एसेट विच आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग विल बी क्लासिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड थ्रू FVTPL. तो ध्यान रखना, एग्जाम में अगर कहीं पे भी ऐसा फाइनेंशियल एसेट का क्वेश्चन आता है विच इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, कहाँ पे सारे आपको लॉसेस रिकॉग्नाइज करने हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे अगर वहाँ पे जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना है, जो भी उसके फेयर वैल्यू के चेंजेस है किस में रिकॉग्नाइज करने, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट इन P&L. OCI में नहीं जाना है. बट वहां पे ऐसा बोल दिया हेल्ड नॉट फॉर ट्रेडिंग और वहां पे कंपनी ने चूज किया, एंटिटी ने चूज किया टू रिकॉग्नाइज इट एट OCI, तो वहां पे क्या करोगे, ऑटोमेटिकली OCI में जाएंगे. कुछ नहीं बोला है, जनरल रूल क्या बोलता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सारे आप कहाँ जाओगे, FVTPL. ठीक है. उसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट नॉट क्लासिफाइड एट एन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और FVT OCI. जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट ऊपर बच गए थे, जो या तो फिर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो हमने पहले देखे या FVT OCI, ये दो कैटेगरी में नहीं आते, वी विल रिकॉग्नाइज इट एट FVTPL. और तीसरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नॉट क्लासिफाइड एट FVT OCI. जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट FVT OCI में नहीं आए थे, जैसे ट्रेडिंग वाले या फॉर एग्जांपल दूसरे जो एंटिटी ने उनको स्पेसिफिकली FVT OCI नहीं दिया है, दैट विल कम अंडर द FVTPL.
ऑल रिटर्न्स एंड फेयर वैल्यू चेंजेस आर क्लासिफाइड इन पीएनएल। इस कैटेगरी में क्या होगा, सारे रिटर्न, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, व्हाटएवर द केस में भी, बोनस ये वो सब केस में रिकॉग्नाइज करेंगे आप, यू विल रिकॉग्नाइज इन पीएनएल। तो कैसा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप सारे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी कुछ आपको मिलता है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, जो भी मतलब जैसे भी आपको रिसीव होगा व्हाटएवर द केस में भी, तो उस तरीके से आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव्स नॉट फॉर हेजिंग पर्पसेस, ये एग्जांपल्स है द फाइनेंशियल असेट, ये आप ध्यान में रखिएगा। वहां पे हो सकता है डायरेक्टली आपको ना बताया गया कि किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है या मेजर करना है, तो ये ध्यान में रखना है। डेरिवेटिव्स नॉट फॉर हेजिंग पर्पसेस, जो हेजिंग पर्पसेस के लिए नहीं होते, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, जो भी ऑप्शन स्वैप्स होते हैं, दीज आर फॉर दी hedging purposes, sorry, not for hedging purposes, these are for the speculative purposes, to earn profit to speculation, so ये किस में recognize होंगे, FVTPL। Investment is share that not elected for measurement at OCI, जो भी इन्वेस्टमेंट हमने देखा था जो OCI से नहीं होती है वो PNL में जाएगा। एंड contingent consideration receivable, कोई भी ऐसा contingent consideration है regarding to जो financial asset, वो किस में recognize करेंगे, FVTPL। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ये आपका फाइनेंशियल एसेट्स का क्लासिफिकेशन समझ गए। देखो सर 109 तो बहुत बड़ा है, क्या इतना सफिशिएंट है ये वो है, देखो मैं मानता हूँ 109 काफी बड़ा है, बट इतना इन डेप्थ में जाना आपके आईवीएस के लिए आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड है। तो इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल गया कि कौन कहाँ मेजर करेंगे, बिकॉज इसी में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है, इवन द स्टूडेंट जो क्लास ले चुके हैं उनको भी डाउट होता है कि कब ओसीआई कब पीएनएल लेना है, तब क्या क्लासिफाई करना है। तो ये चीज आपको अगर आज समझ आ जाती है तो दैट वुड बी इजियर फॉर यू। तो आपके लिए ये समझ लीजिए एक सिंपल ओवरव्यू है, यहाँ पे आपको सिंपल सब चीजें समझ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के लिए, एफएल के लिए डिफॉल्ट कैटेगरी वुड बी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर इफ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस इन अदर थिंग्स जो हम नीचे देखेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आर टू बी मेजर्ड एट amortized cost like trade payables, bank borrowings, etc. जो भी FVTPL, बाकी जो भी आएंगे वो FVTPL में जाएंगे। आपने एक चीज देखी, FVT OCI फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में नहीं रहता ज्यादा, FVTPL या फिर amortized cost को ही ज्यादा प्रेफरेंस, या ऑलमोस्ट मैं कहूँ यही इसी में कैटेगरी में जाती है। ठीक है, कौन सी चीजें FVTPL के थ्रू आएंगी, दैट वुड बी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज दैट आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग लाइक डेरिवेटिव, स्वैप, ऑप्शन, फ्यूचर्स, व्हाटएवर द केस में भी। एंटिटी इलेक्ट्स टू मेजर इट एट FVTPL, यहाँ पे डिफॉल्ट कैटेगरीज और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, अगर एंटिटी चाहे तो इट कैन मेजर इट एट FVTPL। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन FV और FL आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा, फेयर वैल्यू पे। इनिशियली जब भी फर्स्ट रिकॉग्निशन, फर्स्ट मेजरमेंट शुड बी एट फेयर वैल्यू, ये पॉइंट ध्यान रखना। कोई भी हो, whether it is financial asset or financial liability, it is measured first at fair value. If financial asset or financial liability are not recognized at fair value, transaction costs that are directly attributed to acquisition or issue of are adjusted against fair value. अगर fair value पे recognize नहीं है तो जो transaction cost जो directly attributable है, directly attributable to the acquisition or issue, या तो financial asset या liability के acquisition या issue पे जो directly attributable जो cost है उसको हम एडजस्ट करेंगे, किससे, फेयर वैल्यू से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इनिशियल मेजरमेंट एंड ये सब देखो। अब अगर फाइनेंशियल एसेट है तो एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे अगर हम उसे कर रहे हैं, इनिशियल मेजरमेंट क्या रहेगा, FV, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अगर FVT OCI पे है तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा क्या रहेगा, FV, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज, मतलब शुड इंक्लूड इन द असेट और लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल एसेट अगर FVTPL से है, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा क्या रहेगा, फेयर वैल्यू पे। बट इफ इट इज विद FVTPL, यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करना है, उसी ईयर में PNL में आपको उड़ा देना है। ये बात ध्यान रखना है, एक बार पढ़ लेना, ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। थोड़ा स्पीडली मैं बोल रहा हूँ बिकॉज क्या है, टाइम का है, ज्यादा बड़ी वीडियोस हम नहीं कर सकते और आपका भी टाइम बचाना है, बिकॉज यू हैव अदर सब्जेक्ट टू रीड टू स्टडी एज वेल। तो यहाँ पे हम लोग आपका जितना टाइम सेव कर सकें, इट वुड बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस। ठीक है, उसी के बाद सेम फाइनेंशियल लायबिलिटी बताया, FVT OCI इसमें नहीं होता, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट स्टार्टिंग हमेशा FV पे करेंगे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिडक्ट फ्रॉम द अमाउंट रिकॉग्नाइज और FVTPL में एक्सपेंस हम कर देंगे। ठीक है, समझ गए, इजी है, सिंपल। चलो आगे, फिर रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट।
An entity shall reclassify financial statement only if the entity changes its business model from managing those financial assets. If only the business model is changing, उसके बाद ही आप करेंगे. And such changes are determined by entity senior management as a result of external or internal changes. इसी केस में करेंगे when an entity begins or ceases to perform an activity or such changes are very infrequent. यही केसेस में you will reclassify the financial asset. अब उसकी reclassification की अकाउंटिंग कैसे होगी? ओरिजिनल कैसे था? अमोर्टाइज कॉस्ट पे, उस पे किस में आपने रिक्लासिफाई कर दिया? FVTPL पे. अकाउंटिंग क्या करेंगे? फेयर वैल्यू इज मेजर्ड एट द रिक्लासिफिकेशन डेट. पहले आप क्या करेंगे? यू विल मेजर द फेयर वैल्यू. वो जनरली गिवन रहेगी क्वेश्चन में. मुझे नहीं लगता है रिक्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, बट आ जाता है तो MCQ में ही आएगा बेसिकली मुझे लग रहा है, या जनरल एंट्री पूछेंगे अगर उनको ज्यादा ही आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होगी तो. बट मुझे नहीं लगता, अगर आ गया तो वी हैव दिस चार्ट, कंप्लीटली चार्ट है. क्या करना है आपको पता है. अगर FVTPL में जाता है तो ये करना है. FVT-OCI सेम एज अबव जस्ट द डिफरेंट रेट. क्लासिफाई इन OCI, नो चेंज इन EIR. वहां पे क्या हो रहा था? EIR चेंज होगा, यहाँ पे EIR चेंज नहीं होगा. दैट इज योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा. अगर FVTPL से अमोर्टाइज में जा रहा है तो फेयर वैल्यू ऑन द डेट उसको क्या कर देंगे हम? रिवाइज कैरिंग कॉस्ट कर देंगे, और EIR नया कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ रिवाइज कैरिंग कॉस्ट. सर ये EIR अगर कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ लो. आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर यू टू अपीयर इन IBS. FVT-OCI क्या करेंगे यहाँ पे? FVT-OCI से किस में जा रहा है? अमोर्टाइज में. तो यहाँ पे भी सेम क्या होगा? FV ऑन द डेट इज रिवाइज कैरिंग अमाउंट. हाउएवर क्यूमुलेटिव गेन एंड लॉसेज इन OCI इज एडजस्टेड अगेन फेयर वैल्यू. यहाँ पे P&L में आप उसको रिक्लासिफाई नहीं करेंगे. जो भी गेन एंड लॉसेज है, सपोज अगर इफ दे आर गेन्स इन OCI तो वो आप फेयर वैल्यू में एडजस्ट मतलब और ऐड कर देंगे. लॉसेज है तो क्या करेंगे? यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम द फेयर वैल्यू. फिर FVTPL में क्या करेंगे? असेट कंटिन्यू टू बी मेजर एट फेयर वैल्यू, वो कंटिन्यू वैसे ही रहेगा. बस जो यहाँ पे ये सिंपल है, FVTPL टू FVT-OCI टू FVTPL में आ रहा है, कुछ नहीं करना है. जो FVT-PCI में आपके FVT-OCI में जो आपके रिवैल्यूएशन के गेन या लॉसेस थे जो OCI में, उसको रिक्लासिफाई आपको कर देना है P&L में. खत्म. ठीक है. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज नॉट अलाउड. रिक्लासिफिकेशन फाइनेंशियल एसेट का कर सकते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी का रिक्लासिफिकेशन इज नॉट अलाउड. के बाद इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. जनरल अप्रोच, सिंप्लीफाइड अप्रोच. अब इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कर सकते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन आइदर 12-month ECL. ECL इज योर एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल, या फिर लाइफ टाइम ECL. ये बेसिक है, इसमें कुछ इतना ज्यादा आपको डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट रीड इट आउट. और स्कोप एंड वेरिएशन यहाँ पे चीजें दी हुई है, जस्ट रीड इट आउट. कोई इतना ज्यादा जरूरत नहीं है. क्रेडिट लॉस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो दैट आर ड्यू टू एंटिटी माइनस डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू रिसीव. तो ये जो डिफरेंस है दैट इज योर क्रेडिट लॉस. इसी के बेसिस पे आप कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जो एंटिटी को आना है, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो एंटिटी रिसीव करने वाली है, दोनों का अगर डिफरेंस है तो देयर वुड बी क्रेडिट लॉस, बिकॉज आपने उतना एस्टिमेट किया था बट नाउ द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आर लेस, सो देयर इज अ क्रेडिट लॉस. तो वहां पे यू हैव टू इम्पेयर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. बेसिक है, कुछ इतना ज्यादा उसमें नहीं है. फिर ये डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट. डी रिकॉग्निशन रिफर्स टू टाइमिंग ऑफ रिमूवल ऑफ फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम बैलेंस शीट. रिमूवल ऑफ फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम बैलेंस शीट. ये सब चीजें बेसिक है, देख लेना कौन से. इफ द राइट in which situation the entity would de-recognize the financial asset and de-recognize the financial liabilities and its accounting, वो दिया हुआ है. एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है FR में, बट मुझे नहीं लगता ज्यादा इंस्टीट्यूट यहाँ से पूछ सकता है. पूछा भी तो यू हैव दैट एक्सचेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी. डेट रिस्ट्रक्चर क्या क्या होता है, कौन से केस में मॉडिफिकेशन होता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी का? तो दो केस है, या तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ ओरिजिनल एंड रिकॉग्निशन ऑफ न्यू. या पुरानी फाइनेंशियल लाइबिलिटी वुड बी एक्सटिंग्विश्ड एंड नई न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी वुड बी रिकॉग्नाइज. सब्सटेंशियली डिफरेंट टर्म्स वेयर. जहां पे अब कौन से केसेस में, कौन से केस में आपको ऐसी अकाउंटिंग करनी है. देन PV प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज अंडर न्यू स्कीम. जो नई स्कीम अभी आपको मिली है, न्यू स्कीम कब मिलेगी? फॉर एग्जांपल आपकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, बैंक के साथ आपका अगर नेगोशिएशन हो गया, यू विल गेट अ न्यू लोन फैसिलिटी. तो वो पुरानी लोन फैसिलिटी हटा के न्यू लोन फैसिलिटी आपको मिल रही है,
तो उसमें आपको क्या देखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज अंडर न्यू स्कीम प्लस फीस पेड माइनस एनी फीस रिसीव्ड लेस discounted PV of remaining cash flow of original financial liability is 10% or more of the discounted PV of original financial liability. क्या देखना है, मतलब सीधी सीधी भाषा में आपको बोलूं तो जो PV of original FL जो आपकी ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, अगर जो नए वाली फाइनेंशियल लाइबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू माइनस एनी फीस रिसीव प्लस एनी फीस रेट इज मोर देन 110%, 110% से अगर ज्यादा है तो आप ये वाली अकाउंटिंग करोगे. अगर नहीं होती है ज्यादा तो क्या करना है, सिर्फ मॉडिफाई कर देना है एग्जिस्टिंग. अगर फॉर एग्जांपल पीवी ऑफ द ओरिजिनल रिमेनिंग जो कैश फ्लो आपके पास है उसका अगर फॉर एग्जांपल पीवी इज 100 एंड द न्यू कैश फ्लो प्लस फीस पेड और एनी फीस रिसीव्ड इज 105, तो इस केस में आप ये वाली अकाउंटिंग नहीं करेंगे, you will just modify the existing financial liability. अगर पास हो जाते हैं तो क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये 115 हो जाता है इस केस में क्या करेंगे, डी रिकॉग्निशन. पहले यू विल डी रिकॉग्नाइज दिस एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, रिकॉग्निशन ऑफ न्यू एफएल एट इट्स फेयर वैल्यू डिस्काउंटेड एट न्यू ईआईआर. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू ईआईआर को कैलकुलेट करना पड़ेगा. गेन एंड लॉस ऑन एक्सटिंग्विशमेंट इज चार्ज टू पीएनएल. जो भी गेन एंड लॉस होगा ऑन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ प्रीवियस लाइबिलिटी, गेन होता है लॉस होता है व्हाटएवर द केस में भी, इज चार्ज टू पीएनएल. एंड रिकॉग्नाइज एनी इंक्रीमेंटल फीस और कॉस्ट फॉर सच मॉडिफिकेशन, कैलकुलेट न्यू ईआईआर फॉर द मॉडिफाइड फाइनेंशियल लाइबिलिटी. समझ गए, सिंपल सा है, इतना ही ध्यान में रखो. दिस मोर देन इनफ फॉर यू फॉर आईबीएस. ठीक है, उसके बाद एक ये लास्ट पॉइंट है कुछ, डेरिवेटिव्स एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स क्या होता है आपको पता है, जिसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग वेरिएबल से डिराइव होती है या अंडरलाइंग वेरिएबल की चेंज होने से तो वैल्यू डिराइव होती है, तो वो सब होते हैं डेरिवेटिव्स. अब ये सिंपल सी बात है, क्या अकाउंटिंग होगी कैसे होगी ये बेसिक है. एम्बेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं जहां पे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट दैट आल्सो इंक्लूड अ नॉन डेरिवेटिव होस्ट. ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाइब्रिड है जिसमें एक अमाउंट डेरिवेटिव है और एक अमाउंट नॉन डेरिवेटिव है, with the fact that some cash flows of combined instrument vary in similar to standalone instrument. Example देखिए, what are the example? Company A owns a bond which is convertible into ordinary share. तो host contract क्या है, bond है, but embedded derivative क्या है, एक conversion option आपको उसके साथ मिल रहा है जो bond को share में convert कर सकते हैं. Second example, company A enters in a lease contract with an inflation factor such that each year rentals are adjusted for changes in risk price index. तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या है आपका, लीज. सेकेंड एम्बेडेड डेरिवेटिव, उसके साथ आपको क्या मिल रहा है, एडजस्टमेंट टू आरपीआई, दैट इज योर रिस्क प्राइस इंडेक्स. उसके बाद कंपनी ए सेल्स पीपी टू कंपनी बी ऑफ यूएसडी 1 लाख. बोथ ऑफ द कंपनीज आर लोकेटेड इन इंडिया. अब दोनों इंडिया में लोकेटेड है, पर यहाँ पे क्या है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसमें किया है, यूएसडी में. तो आपका एक तो सेल कॉन्ट्रैक्ट जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक उसके साथ एम्बेडेड डेरिवेटिव फंक्शन कौन सा है, INR USD फॉरेन एक्सचेंज. जो फॉरेन एक्सचेंज का वो जो डेरिवेटिव फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट के साथ एडेड है. मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, नॉन डेरिवेटिव रहता है. नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक डेरिवेटिव पार्ट जुड़ जाता है, दैट इज योर एम्बेडेड डेरिवेटिव्स. अब आपको क्या करना है, सेपरेशन ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव फ्रॉम द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे ये होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बॉन्ड लेना, लीज करना, सेल, ये सब होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है. इनके साथ देयर इज अ डेरिवेटिव पार्ट एडेड टू इट, दैट इज योर एम्बेडेड डेरिवेटिव. और होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड इन Ind AS 109. अगर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट 109 के अंदर कवर होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, तो वहां पे यू डोंट हैव टू सेपरेट एम्बेडेड डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट, और उसको एंटायर इज मेजर्ड एट FVTPL. ठीक है, FVTPL में करना है. अगर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कवर्ड, अगर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर Ind AS 109, फिर सेपरेट एम्बेडेड इंटरव्यूज सेपरेट एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, वहां पे आपको क्या करना है, यू हैव टू सेपरेट द एम्बेडेड डेरिवेटिव पार्ट और होस्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपको अलग से ट्रीट करना है. If economic characteristics of ED, that is embedded R host, are closely related, entire instrument is measured at FVTPL. अगर economic characteristics बहुत ही closely, मतलब यानी कि वो embedded derivative के बिना वो contract हो ही नहीं सकता, तो वहां पे what you have to do, you have to measure the entire instrument at FVTPL. ये देखना है, बेसिक है, इतना ज्यादा आपको मुझे ही लगता है कि वो रहेगा, बट एक बार समझ लो, कुछ आ जाता है तो we have that. A separate instrument with the same terms as embedded derivative meet the definition as derivative. तो वहां पे क्या होगा कि जो embedded derivative part है
वो ऐसा है कि वो अलग से डेरिवेटिव की डेफिनेशन में भी आ जाता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, एंटायर इंस्ट्रूमेंट इज मेजर, वहां पे भी पूरा इंस्ट्रूमेंट मेजर करना है FVTPL। इफ सच हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट इज मेजर एट FVTPL, अगर ऑलरेडी FVTPL पे मेजर हो रहा है तो कैसे मेजर करना है, FVTPL पे ही चलने दो। और कोई अगर केस है इसके अलावा, इन तीन के अलावा देयर इज सम अदर केस, वहां पे यू हैव टू सेपरेट एम्बेडेड डेरिवेटिव और उसकी दोनों की अकाउंटिंग सेपरेटली करनी। रेगुलर वे ऑफ और परचेज और सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, a purchase or sale of financial asset under contract for which delivery of asset within time frame established generally by regulation or convention। सिंपल मतलब यानी आपने कुछ खरीदा, आपको डिलीवर होगा, रेगुलर जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं वैसा। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करनी है, क्या सेटलमेंट डेट रहेगा। सो बेसिक सी चीजें हैं, ज्यादा इतना कुछ उसमें प्रॉब्लमेटिक मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो आपने समझ लिया किस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कवर हो रहा है, किस तरीके से चीजें आपसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करेगा और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल द नॉलेज दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू फ्रॉम FR वुड बी इंटरमीडिएट, ज़्यादा एक्सपर्ट या ज़्यादा एडवांस लेवल का नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो लोग, बिकॉज उन लोग को भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी सिंगल ग्रुप प्रिपेयर करेंगे या फिर ऑलरेडी इतना ज़्यादा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है, उसको ज़्यादा FR का इंट्रोड्यूस करके कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो आई गेस इतना अगर आपको पता है तो इट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू अपीयर IBS रिगार्डिंग द IND AS 109। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी कोई भी चीज़ें रहेगी हम डेफिनेटली उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू CS फर्स्ट दुरानी। कल शायद MTP का आपका वीडियो आ जाएगा, उसके साथ मैंने आपको जैसे बोला फॉरेक्स का एक शीट आपको मैं दे दूंगा, सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, जितने स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके आई वुड बी सो ग्रेटफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।